محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. ٹی آر ایس دور حکومت میں ہی حیدرآباد میں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کام دیے گئے انجام، جبکہ بی جے پی حکمران ریاست آج بھی پریشان. کے سی آر صاحب کی اسکیمات سے ہر فرد کو ہوا فائدہ. جی ایچ ایم سی انتخابی مہم سے ریاستی وزیر کے ٹی آر ویملا پرشانت ریڈی بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد. کانگریس سینئر قائد احمد پٹیل کا مختصر سی علالت کے بعد انتقال، کانگریس کو لگا جھٹکا. ضلع کے چند اقلیتی قائدین نے کیا افسوس کا اظہار، لیکن کانگریس بھون میں تقریب کا اہتمام نہیں. مجلس کی قیادت میں اقلیتی علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ جاری. 10 لاکھ کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹ کے کام جاری. رکن اسمبلی شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ عامر کے ہاتھوں نوی پیٹ منڈل میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، وہ سی ایم ریلیف فنڈ چیکس کی تقسیم. آنگن واڑی سینٹرز پر بڑے پیمانے پر دھان لیا، حاملہ خواتین تغذیہ بخش غذا سے محروم. سابقہ کوآپشن ممبر سید خیسر نے کیا کارروائی کا مطالبہ. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ صاحبہ کے ہاتھوں نوی پیٹ منڈل میں ترقیاتی کاموں کا آغاز اور استفادہ کنندگان میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس کی تقسیم. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے نوی پیٹ منڈل موضع کوسلی میں مہیلا گروپ کو منظور ہونے والے 20 لاکھ سے جدید فارم کے اوزار اور مشینری کرائے کا مرکز کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ مہیلا گروپ کو لون منظور ہونے، جدید فارم کے اوزار استعمال کر خود روزگار حاصل کرتے ہوئے روزگار حاصل کرنے کا اظہار کیا. اس کے بعد انہوں نے سبھاش نگر سے تعلق رکھنے والے پاشا شیخ کی صحت ناساز ہونے سے رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت منظور کردہ ایل او سی کے ذریعے ان کے علاج و معالجے کے لیے 3 لاکھ روپے منظور کرانے کا انکشاف کیا. ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے اپنے چیمبر میں زرعی عہدیدار، زرعی سائنسدانوں کے ساتھ کسانوں کے لیے شعور بیدار اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا. ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے بروز چہارشنبے کو اپنے چیمبر میں زراعت، فارم میکانائزیشن، یوریا کا استعمال و دیگر اہم نکات پر تبادلہ خیال کے لیے ضلع زرعی عہدیدار، زرعی سائنسدانوں کے ساتھ کسانوں کے لیے شعور بیدار اجلاس کا انعقاد عمل میں لا کر کہا کہ کسان اپنی کاشت کردہ فصلوں میں یوریا کا اور کھاد کا مناسب مقدار میں استعمال کریں اور پانی کی سربراہی میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دینے کا انکشاف کیا. مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں نظام آباد کے اقلیتی علاقوں کی بدلی قسمت. تقریباً 10 لاکھ کی لاگت سے شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کا قیام، ترقیاتی کاموں کا ڈپٹی میئر ادریس خان و فلور لیڈر شکیل فاضل و کارپوریٹرز نے لیا جائزہ. شہر کے کئی علاقے رات کے اوقات تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ راستوں پر حادثوں کا خدشہ لاحق ہے، اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین ڈپٹی میئر ادریس خان، مجلسی فلور لیڈر شکیل فاضل و کارپوریٹر کی میونسپل کمشنر محکمہ الیکٹریسٹی سے نمائندگی پر شہر کے علاقے گوشالہ روڈ جو بودھن روڈ سے بابن صاحب پہاڑی تک جاتا ہے، تمام راستے پر اسٹریٹ لائٹ کو نصب کیا جا رہا ہے. اسی طرح نالج پارک اسکول کے پاس کے علاقے میں بھی کام کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ کام تقریباً 10 لاکھ کی لاگت سے انجام دیا جا رہا ہے. اس موقع پر کانٹریکٹر کے ہمراہ ڈپٹی میئر ادریس خان، فلور لیڈر محمد شکیل فاضل، کارپوریٹر افسر بیگ ذکی الدین، اعجاز حسین، کوآپشن ممبر ارشد پاشا، شہباز و دیگر نے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے کانٹریکٹرز کو کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. الحمدللہ آج گوشالہ جو روڈ ہے بودھن روڈ تھا بابن صاحب پہاڑی اور
नॉलेज पार्क के एरिया में म्यूनसिपल जनरल फंड के तहत हम तमाम ही मजलिसी कायदीन ने मिलकर एक नुमाइंदगी की, क्योंकि ये रास्ते में जाते वक्त रोशनी की कमी की वजह से काफ़ी हादसात रूनुमा हो रहे थे। उसको देखते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से और म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ ये तय पाया कि यहाँ के एरिया को रोशनी देने के लिए हम लोगों ने मुतालबा किया था और ये डिमांड किया था, जो चीज़ मंजूर हुई और वो कल से काम शुरू होगा। इसका तखमीना बजट 10 लाख के करीब है और मैं ये बबन साहब पहाड़ी की आवाम के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो एरिया के लोग यहाँ से ज़्यादा गुजरते थे और इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़यादत में रेंजल मंडल मौजे भागेपल्ली में तेजी के साथ तरक्की होने से मुकामी अवाम की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब क़यादत से रेंजल मंडल के मौजे भागेपल्ली में दिन ब दिन तरक्की होने से मुकामी अवाम की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता 60 साल में ना होने वाली तरक्की मौजे को MLA शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी की सबब तरक्की की तरफ रवा दवा है और मौजे की तरक्की के तहत मुनक़िद करदा प्रोग्राम के तहत देहात को खूबसूरत डंपिंग यार्ड वाईकुंठ धामम की बेमिसाल तरक्की हो चुकी है। सरपंच ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जंगलात शुरू करदा हरितहारम चजकारी प्रोग्राम के तहत भागेपल्ली में 10,000 पौधों की कामयाब चजकारी अंजाम देने से हर तरफ माहौल सरसब्ज और शादाब नजर आने के साथ तमाम मौज़ूआत में अव्वलीन मुकाम हासिल करने का इंकशाफ किया। MLA గారు గౌరవనీయులు షకీల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। నా పేరు సాయిలు, బాగేపల్లి గ్రామ సర్పంచ్, రెంజల్ మండలం। గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పదవిలో కొనసాగడం జరుగుతుంది। గత ప్రభుత్వాల కంటే ఈ ప్రభుత్వం చాలా మంచి పనులు చేస్తుంది। ఇక్కడ మేము చేసినటువంటి పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా శ్మశాన వాటిక మరియు కంపోస్ట్ షెడ్, డంపింగ్ యార్డు మరియు హరితాహారము, పల్లె ప్రకృతి వనము, అదేవిధంగా గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। शेरख्वार बच्चे ड्रेंच में दस्तयाब दरिंदा सिफत माँ बाप की कारस्तानी। दौरे हाजिर में लड़कियां तमाम शोबे हयात में ज़बरदस्त सलाहियतों का मुजाहरा करने और माँ बाप का नाम रोशन करने, माँ बाप का सहारा बनने के बावजूद बेटी की पैदाइश को बोझ समझा जा रहा है, जो निचली सतह की जहनियत मानी जाएगी। बेटी की पैदाइश को बोझ समझने वाले दरिंदे सिफत माँ बाप ने 9 मौलूद को ड्रेन में फेंक कर चले गए। ये वाक़या मंजर आम पर आने के बाद अवाम में गम व अफसोस का इजहार किया जा रहा है। कमला नेहरू कॉलोनी में कल सुबह के वक्त एक शेरख्वार बच्ची की आवाज ड्रेनेज से आ रही थी। मुकामी लोगों ने देखा और शेरख्वार को वहां से हटाते हुए दवाखाने मुंतकिल किया। बातज़ा ICDS और पुलिस ओहदेदारों को इत्तला दी गई। शेरख्वार बच्ची को सुबह के वक्त ड्रेनेज में फेंक दिया गया। अगर इस वक्त जंगली जानवर या कुत्ते वहां पहुंचने की सूरत में शेरख्वार को चीर फाड़ डालने का खतरा लाक था। ये कैसे दरिंदा सिफत माँ बाप है जो फूल जैसी बच्ची को ड्रेन में फेंक कर चले गए। कई ऐसे लावल्द जोड़े हैं जो औलाद के लिए तरस रहे, लेकिन बाज दरिंदा सिफत साहिब औलाद लोग बच्ची की पैदाइश को बोझ समझकर कचरा और ड्रेन में फेंक देते हैं। ऐसे दरिंदा सिफत लोगों पर जितनी लानत भेजी जाए कम है। बच्चा गटर में मिला, बच्चे देखे तो हम जाके देख के उठा के लेके आए, अस्पताल में बैठाए बच्चे की, पुलिस कंप्लेंट दिए। ऐसा हम जो है हमारी जिम्मेदारी से हम बच्चे को लेके आए। कोरोना वबा की वजह से अगले साल का हज महंगा होगा। 26 जून को पहला काफिला, 14 अगस्त से वापसी। मुख्तार अब्बास नकवी। मरकजी वजीर बराए अखलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से अगले साल यानी साल 2021 के हज के अखराजात महंगे होंगे। इन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ये हज एक अलग सूरत हाल में अंजाम पजीर होगा। मौसूम मरकजी वजीर ने इन बातों का एक इंटरव्यू के दौरान किया है। इन्होंने कहा कि साल 2021 का हज जो होगा वो कोरोना की वजह से अलग ही सूरत हाल में होगा। इस सूरत हाल में हज के अखराजात में इजाफा होगा, जिससे हज के खर्चात
बढ़ जाएंगे। इन्होंने कहा कि हज चूंकि सऊदी अरब में होता है, वहाँ की हुकूमत के प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस कमरे में 8-9 लोग रहते थे, इसमें अब सिर्फ 2 या 3 ही लोग रह सकते हैं, और जिस गाड़ी में 45 हाजी सफर करते थे, इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 हाजी सफर कर सकते हैं, और इसके अलावा भी दीगर अखराजात बढ़ेंगे। नकवी ने कहा कि आज़मीन हज का सफर पर रवाना होने से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ताहम इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे कबल कोरोना खत्म होगा। मौसूफ वजीर ने कहा कि हमारा सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रे के साथ माह दिसंबर में 2 तरफा मुआहिदा तय होने वाला है, जिसमें देखा जाएगा कि हमें कितना कोटा मिल सकता है। इन्होंने कहा कि कोरोना के पेश नजर हाजियों की उम्र की हद को भी 18 से 65 बरस तक महदूद कर दिया गया है। नकवी ने कहा कि मुहर्रम के बाद हज करने वाली खवातीन अमसाल भी दरख्वास्त जमा कर सकती है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना के पेश नजर सऊदी अरब जाने के लिए परवाजों के इमार्केशन पॉइंट्स को 21 से घटाकर 10 कर दिया है। ताहम इन 10 पॉइंट्स में श्रीनगर शामिल है। काबिल जिक्र है कि हर साल 2021 के लिए हिंदुस्तान से हाजियों का पहला काफिला 26 जून को, जबकि आखिरी काफिला 13 जुलाई को सऊदी अरब रवाना होने की तौक़ है। हाजियों की वापसी का सिलसिला 14 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना वबा की वजह से साल 2020 का हज मुतासिर ही रहा। अहमद पटेल का साना इर्तहाल नाकाबिले तलाफी नुकसान, ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस की जीत यकीनी, मोहम्मद जिया अहमद हरकियाती कायद कांग्रेस पार्टी ने सीनियर कायद कांग्रेस पार्टी अहमद पटेल, सियासी मशीर सोनिया गांधी व रुकन राज्यसभा के साना इर्तहाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इसी कांग्रेस के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। इन्होंने कहा कि अहमद पटेल ने हिंदुस्तान और कांग्रेस की सियासत में कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से फिलवक़्त कई कायदीन कांग्रेस पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करते हुए दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार करने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समंदर की तरह है। कांग्रेस को हिंदुस्तान की सियासत की मां करार दिया जाता है। कई कायदीन आते और जाते हैं, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस के मौक़िफ़ से मुतालिक पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर के वोटर्स बाशऊर है। सेकुलर और तरक्की पसंद कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इन्होंने पेश क़ियासी की कि कांग्रेस 70 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर कब्जा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जाकिर, एम.ए. वली मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खबर बड़े अफसोस के साथ दी जाती है कि राज्यसभा मेंबर जनाब अहमद पटेल साहब जो आज हमारे बीच नहीं रहे, 1 महीने की से बीमारी से सफ़र हुए थे, आज 3 बजे रात इंतकाल कर गए। ये बहुत अहम सुतून थे कांग्रेस के। जनाब सोनिया गांधी मैडम साहिबा सारे मशवरे अहमद पटेल साहब से ही लिया करते थे, और अल्लाह उनकी मरहूम को मग़फ़िरत करे, आमीन। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में हम लोग भी उन्हीं के नक्शे क़दम पर चलकर वैसा ही काम करेंगे और कांग्रेस को आगे लेकर चलेंगे। नहीं, वैसा कोई नहीं होता। आप देखे होंगे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समंदर है। एक पेड़ होता है जिसके जड़ें कई दूर तक ज़मीन में रहती, और कांग्रेस पार्टी का आज वही हाल है। कांग्रेस पार्टी दिलों में बसी हुई है, और आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आप ग्रेटर हैदराबाद के लास्ट इलेक्शन में या कॉरपोरेशन D6 के इलेक्शन में निकाल के देखो आप 70% है। रेंजल मंडल के मुकाम पर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक एमपीडीओ गोपाला कृष्णा ने पंचायत सेक्रेटरी व मुकामी ओहदेदारान के साथ शौर बेदार प्रोग्राम मुनक्किद किया। रेंजर मंडल के मुकाम पर मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक एमपीडीओ गोपाला कृष्णा ने पंचायत के सेक्रेटरी के साथ मंडल के मुकामी ओहदेदारों के साथ शौर बेदार प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक 7 अहम नुकात पर तबादले ख्याल करते हुए इन्होंने ड्राइंग प्लेटफॉर्म की तामीरी काम और फसल के खर्चात और लोन रिन्यूअल फसल व खेत से ताल्लुक़ रखने वाले एग्रीकल्चर के ओहदेदारान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि फसलों की काश्त के ताल्लुक़ से वाकिफियत करते हुए कहा कि मुनासिब मकदार में यूरिया का इस्तेमाल फसलों के लिए कारआमद रहेगा। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू होने वाली है, लिहाजा तमाम अवाम
एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना वबा से खुद और अपने अफराद खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल के जनरल सेक्रेटरी, मंडल ज़रई ओहदेदार और मंडल के तालीमी ओहदेदार गणेश राव, MPO गौस मोहिउद्दीन और IKP मेंबर, पंचायत सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ పంచాయతీ కార్యదర్శులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం 7 అంశాలు తీసుకోవడం జరిగింది. డ్రైయింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నిర్మాణాలు, రెండవది లోన్స్ సంబంధించినటువంటి రిన్యూవల్స్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళది, మూడవది పంట పొలాల్లో సాగు చేసే పద్ధతులు, తర్వాత వాడాల్సినటువంటి ఎరువుల మోతాదు ఏ విధంగా అనేటువంటిది एग्रीकल्चर सिब्बंदी अवगाहन कल्पिंचడం। आंगनवाड़ी सेंटर पर धान लिया उरूज पर अवाम की शिकायत पर साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद कैसर ने किया आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा। वो नाक़िस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार, वो जिले कलेक्टर से किया कार्रवाई का मुतालबा। आंगनवाड़ी सेंटर के क़याम का मकसद हामिला ख़वातीन व नौज़ादा बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फ़राहम करना। इससे क़ब्ल तक़रीबन हर हामिला खातून को खून की कमी का मसला लाहिक़ होता था, लेकिन आज फिर से वही हालात वापस आ चुकी है, क्योंकि इन मराकिज़ पर धानिया काफ़ी उरूज पर है। आज मुकामी अवाम की शिकायत पर साबिक़ा मजलिसी कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद कैसर ने मस्जिद इब्राहिम के ज़िम्मेदारों व इलाके के बुजुर्ग अफराद के हमरा आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया और मुकामी अवाम से इनको दी जाने वाली ग़िज़ा के बारे में मालूमात हासिल की और आंगनवाड़ी मरकज़ की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार करते हुए जिले कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया। निज़ामाबाद के आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 26 के अंदर यहाँ पर शिकायत मुझे वसूल हुई कि यहाँ के बोलते सो जो टीचर है, आंगनवाड़ी टीचर, कि वो सही तरीके से बोलते सो अंडे, चावल, तेल वगैरह नहीं दे रहे। तो मैंने यहाँ पर मस्जिद के पास आके, मस्जिद इब्राहिम के पास आके मुजाहिद नगर में पहले बैठा। मैं बैठ के जो ख़वातीन जो यहाँ से अंडे वगैरह लेके जा रहे थे, जो भी लेके जा रहे थे सामान, उनसे पूछा मैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे को 6 अंडे मिले, 4 अंडे मिले, सही नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद उन लोगों को ले आके मैं सेंटर में मुलाकात करा यहाँ के टीचर से, तो उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि हमारे को सही तरीके से कोई चावल नहीं मिल रहा, अंडे नहीं मिल रहा साहब। तो मैं फ़ौरन ऑफिसर से बात किया, नंदिनी मैडम से, तो नंदिनी मैडम ने कहा कि ये वाक़ई साहब आप आके देखे करें, हमको लोग नहीं बताते, शिकायत नहीं करते, आपने मुझे शिकायत की, तो मैं एक्शन लूँगी मैं, और मुझे उसकी तफसीलात मुझे भेजाइए, व्हाट्सअप करिए, मैं जो करना है कार्रवाई करूँगी। गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी दोस्तों बच्चियों के लिए, जो हामिला प्रेग्नेंट ख़वातीन होती है, जो मदर, जो माँ दोस्तों दूध देती है, और जो बच्चे जो प्री स्कूल में पढ़ते हैं, उनको चावल, तेल और आपके अंडे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटर में सही नहीं दिया जा रहा। इस सिलसिले में आके मैंने इसकी शिकायत को देखकर इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा और उनको ख़ास तौर से बताया, और तमाम लोग देखें यहाँ पर। तो लिहाजा जो भी सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिस किसी को तेल, चावल, अंडा नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे बताइए, वो जो भी सेंटर में इंशाल्लाह मैं आके वहाँ पर कार्रवाई करूँगा। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर चिंतला डिवीजन कॉरपोरेटर DRS उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर मुकामी रुकन असम्बली विवेक और जिले परिषद मालियाती मंसूबा मेंबर बाजिरेड्डी जगन मोहन के साथ इजलास मुनाकिद करके चिंतल डिवीजन में कार के निशान पर वोट डालने के ताल्लुक से अहम नुकात पर तबादले ख्याल को मुकम्मल करने के बाद इन्होंने चिंतल डिवीजन कॉरपोरेटर DRS उम्मीदवार रशीदा बेगम की इंतखाबी मुहिम में मदद के पेश नजर GHMC के चिंतल डिवीजन में आज घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए DRS पार्टी के हक में वोट देने की अवाम से अपील की गई। इस मौके पर जिले परिषद मालियाती मंसूबे के मेंबर बाजिरेड्डी जगन मोहन ने कहा कि सिर्फ DRS पार्टी से ही तेलंगाना रियासत की तरक्की हो सकती है। आप तमाम अपना कीमती वोट DRS पार्टी के हक में इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में और रियासती वज़ीर बल्दिया नज़्म KTR की निगरानी व दीगर फलाही व तरक्याती स्कीमात की जानिब गामज़ान है। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िरक़ा परस्त पार्टी की जानिब से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है, लिहाजा बाशर अवाम मौके की नज़ाकत को समझते हुए DRS उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा अज़ला के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, KCR सेवा दलम के मेंबर, मौज़ी के कन्वीनर देविंदर, इंदलवई सोसाइटी चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की।
تلنگانہ حکومت کی جانب سے نامزد امیدوار کو منتخب کرنے پر دیگر ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کو تیزی کے ساتھ روبے عمل لانے کا کیا انکشاف، ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی۔ گریٹر حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن انتخابات کے مد نظر قطب اللہ پور حلقے 127 ڈویژن رنگا ریڈی کے احاطے گاندھی نگر میں دھوم دھام پروگرام کا انعقاد عمل میں لانے پر ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی، ملا ریڈی ایم ایل سی شمی پور راجو، رکن اسمبلی کے پی وویکانند نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ریاست تلنگانہ میں ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کو تیزی کے ساتھ روبے عمل لانے سے تمام عوام کو راحت پہنچ رہی، لیکن بی جے پی زیر اقتدار والی ریاستوں میں ترقیاتی و فلاحی اسکیمات کا نام و نشان تک محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت پر ہمیشہ غریب عوام کے لیے کئی اسکیمات کو روشناس کیا، جن میں شادی مبارک، کلیانہ لکشمی کے علاوہ شہر حیدرآباد میں طوفانی بارش کے سبب متاثرہ گھروں میں 10,000 روپے کی رقم فراہم کی گئی اور شہر حیدرآباد کو مثالی حلقے میں تبدیل کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے نامزد امیدواروں کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے منتخب کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں بی وجے شیکھر گوڈ، مقامی ٹی آر ایس کارکنان و قائدین و دیگر موجود تھے۔ مودی حکومت میں مسلم ادارے نظر انداز، کئی عہدے خالی، قومی اقلیتی کمیشن میں صرف ایک رکن کا تقرر، ماں باقی 6 عہدے مخلوع، کورونا کے باعث تقررات میں تاخیر۔ نریندر مودی حکومت میں مسلم ادارے نظر انداز کر دیے جا رہے ہیں، کئی عہدوں پر مسلمانوں کے تقررات روک دیے گئے ہیں۔ قومی اقلیتی کمیشن بھی ایک اہم ادارہ ہے، یہاں صرف ایک رکن کا تقرر کیا گیا جبکہ ماباقی 6 عہدے خالی ہیں۔ گزشتہ مئی سے 5 عہدوں پر مکمل نہیں کیا گیا۔ 25 اکتوبر سے صرف ایک عہدیدار کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ اقلیتی کمیشن کے نائب چیئرمین منجیت سنگھ رائے کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ خالی تھا۔ اقلیتی کمیشن میں 7 ارکان کا ہونا لازمی ہے، ان میں ایک چیئرپرسن اور نائب چیئرپرسن بھی شامل ہے۔ اراکین میں مسلم، عیسائی، سکھ، بدھسٹ، پارسی اور جین طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کو رکن کی حیثیت سے شامل کیا جاتا ہے، لیکن نریندر مودی حکومت نے اقلیتوں کے اس اہم ادارے کو نظر انداز کر دیا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ کووڈ-19 وبا کے باعث بعض عہدوں پر تقررات میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن تقررات کا عمل جاری ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قومی اقلیتی کمیشن میں خالی عہدوں کو پر نہیں کیا جا رہا ہے۔ 2017 میں تمام 7 عہدے 2 ماہ تک خالی تھے۔ این ڈی اے گورنمنٹ کو مسلمانوں کے تعلق سے اختیار کردہ رویے پر تنقیدوں کا سامنا ہے۔ کمیشن برائے درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں میں کئی عہدوں پر تقررات عمل میں نہیں لائے گئے۔ اس سلسلے میں دہلی ہائی کورٹ نے مرکز سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت میں درخواست داخل کی گئی تھی کہ حکومت قومی اقلیتی کمیشن میں تقررات کو پورا کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کمیشن کے تمام ارکان ہونے کے باوجود اس کی کارکردگی ہمیشہ مؤثر نہیں رہی ہے، لیکن اس میں اقلیتوں کے لیے کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ جمہوریت میں حکومت کا اہم رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ادارے کو اختیارات عطا کرے۔ جب قومی اقلیتی کمیشن میں عہدے خالی ہو تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد رینج آئی جی شیوا شنکر ریڈی نے بروز منگل کو کاماریڈی سی آئی جگدیش کو برطرف کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ ضلع کاماریڈی کے سرکل انسپکٹر جگدیش بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے پر اے سی بی کے عہدیداروں کی جانب سے اس ماہ کی 20 تاریخ کو ان کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد حراست پہ لے کر کریم نگر کے اے سی بی کورٹ میں پیش کرنے سے اس ماہ کی 22 تاریخ کو جگدیش کو ریمانڈ پر منتقل کرنے کے لیے جج اے سی پی عہدیداران کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ نظام آباد رینج آئی جی شیوا شنکر ریڈی نے کیس کی مکمل تحقیقات تک سی آئی جگدیش کو برطرف کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ عوام کو کورونا ویکسین کا بے چینی سے انتظار، حکومت ٹیکے دینے کے لیے تیار، وزیر اعظم کے ساتھ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ویڈیو کانفرنس۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت عوام کو سائنسی طور پر منظورہ کورونا وائرس کی ویکسین ٹیکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ ویکسین دینے سے قبل اس بات کی جانچ کر لی جانی چاہیے کہ آیا اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو ملک کے تمام چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی، جس میں عوام کو ٹیکہ دینے سے
मुतालिका तरीक़े कार पर तबादले ख्याल किया गया। इस तनाज़ुर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि अवाम वैक्सीन के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। साइंसी तौर पर मंजूरा वैक्सीन वक्त की जरूरत है। हुकूमत तेलंगाना तरजीह बुनियाद पर अवाम को टीका देने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। ताहम इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आया वैक्सीन के कोई मुज़र असरात तो नहीं होते। मुल्क में मुख्तलिफ मौसम और मौसमी हालात हुआ करते हैं। कोरोना वायरस से भी मुल्क एकसा अंदाज में मुतासिर नहीं हुआ और वैक्सीन से भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मुज़र असरात हो सकते हैं। इसलिए इब्तिदा में रियासतों को वैक्सीन के डोसेज का एक बैच रवाना किया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल चंद अफराद पर किया जा सकता है और इन अफराद पर वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद दूसरे अफराद का अहाता किया जा सकता है। तेलंगाना में कोरोना के 921 नए केसेस, मजीद 4 अमवात। तेलंगाना में पीर को कोरोना वायरस के 921 नए केसेस और मजीद 4 अमवात सामने आए हैं, जिसके बाद इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1437 हो गई, जबकि मुस्बित केसेस की तादाद 2,65,049 दर्ज की गई है। पीर तक रियासत में सरगर्म केसेस की तादाद 1147 बताई गई। महकमे सेहत की तरफ से यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि पीर को मजीद 1097 अफराद के सेहतयाब होने के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद 2,52,565 हो गई। रियासत में सेहतयाबी की शरह 95.28% दर्ज की गई, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 93.7% बताई गई है। इतवार और पीर के दरमियान रियासत में 42,740 कोरोना टेस्ट किए गए और मजीद 594 नमूनों का इंतजार है। रियासत में अब तक 52,01,214 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनके मुंजमिला 65,049 मुस्बित रहे और 2,52,565 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कोरोना वायरस के 146 नए केसेस सामने आए। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने GHMC इंतखाबात के मद्देनजर 131वें डिवीजन कुतुबुल्लापुर TRS उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में मदद के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कायदीन व कारकुनान से मिलकर इंतखाबी तशरीह की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद के DCCB के चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर 131 डिवीजन के हाथे गणेश नगर बस्ती में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कार के निशान को वोट देकर TRS कॉर्पोरेटर्स उम्मीदवार श्रीमती पारिजिता गौरेश को भारी मेजोरिटी से मुंतखब करने के लिए हल्के कुतुबुल्लापुर के 131 डिवीजन इंतखाबी इंचार्ज रियासती TRS कायदीन के हमरा मिलकर इंतखाबी तशरीह करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के इख्तितार पर फायज होने के बाद कई तरह की फलाही व तरक्काती स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल लाकर रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने की वजह से अवाम की जानिब से खुशी का इजहार होने के साथ TRS पार्टी इंतखाबी मुहिम में अवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। इन्होंने कहा कि BJP और कांग्रेस पार्टी के कायदीन TRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अवाम की भरपूर पजीराई मिलने से बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को गुमराह करें, लेकिन अवाम समझदार है। सही वक्त पर सही फैसला करते हुए अपोजिशन कायदीन के होश उड़ाने का इंकशाफ किया। इस इंतखाबी मुहिम के तशरीह प्रोग्राम में 131 डिवीजन के TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान और बांसवाड़ा हल्के के कायदीन व कारकुनान ने भी भारी तादाद में शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। TRS दौरे हुकूमत में ही हैदराबाद में करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम दिए गए अंजाम, जबकि BJP हुक्मरान रियासत आज भी परेशान। KCR साहब की स्कीमात से हर फर्द को हुआ फायदा। GHMC इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर KTR, वेमला प्रशांत रेड्डी, बोधन रुकन असम्बली शकील अहमद। कांग्रेस सीनियर कायद अहमद पटेल का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल, कांग्रेस को लगा झटका। जिले के चंद अक़लियती कायदीन ने किया अफसोस का इजहार, लेकिन कांग्रेस भवन में तकरीब का एहतिमाम नहीं। मजलिस की क़यादत में अक़लियती इलाकों में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी। 10 लाख की लागत से स्ट्रीट लाइट की काम जारी। रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर के हाथों नवीपेट मंडल में तरक्याती कामों का आगाज, वो CM रिलीफ फंड चेक्स की तक़सीम।
आंगनवाड़ी सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर धान-लिया हामिला खवातीन तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा से महरूम। साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर ने किया कार्रवाई का मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।